Hello students. In our previous lecture we have studied about osmotic pressure. Okay, osmotic pressure. We will denote osmotic pressure as pi. Okay, so as I have told you that according to the osmotic pressure formula we can write pi V is equals to nRT. Here pi is osmotic pressure. So we can write pi is equals to nRT upon V. So we can say pi is equals to CRT. Okay. So this is the formula of osmotic pressure, and I have told you about osmotic pressure and reverse osmosis also. After that, our last topic is abnormal molar masses. Normal molar masses, as we have studied in our previous classes, the normal molar mass of water is 18. Okay, and here we will learn about some abnormal molar masses. I want to revise some normal molar masses of water. We will count in this way. The molar mass of water, normal molar mass of water is 18. Normal molar mass of ethanoic acid is 122. Normal molar mass of phenol is 94. So this is the way which we have studied in our previous lectures, in our previous classes also. Even in 9th standard you have studied this topic. Normal molar mass means simply that molar mass which we count in this way. Okay, so what is the meaning of abnormal molar mass? So a molar mass that is either higher or lower than the expected or normal molar mass is called abnormal molar mass. Okay, नॉर्मल मोलर मास जो हमारा होता है उससे करते या तो हमारा ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा. दैट हायर और लोअर वैल्यूज ऑफ मोलर मासेज आर नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास. नाउ यू विल आस्क where we will find that abnormal molar masses. So I want to tell you about some formulas. Okay, here are some formulas, method to determine molar masses. Okay, we have studied in this chapter also. Okay, using Raoult's law, molar elevation method, molar depression method, osmotic pressure method. Simply I will teach you according to osmotic pressure method. According to osmotic pressure, formula is pi V is equals to nRT. Here pi V is equals to n is equals to W by m RT. So we can write capital M means small molar mass. This will be the abnormal molar mass of solute. क्या आएगा ये? Abnormal molar mass of solute is equals to WRT upon V. So इस मेथड से अपने क्या काउंट कर सकते हैं हम? Abnormal molar masses. All those are the formulas which will count abnormal molar masses and normal molar masses as we have studied in our previous classes. Okay, so you can go through those formulas and check out how we would get abnormal molar masses. Here using Raoult's law, this is the Raoult's law. In this formula we will find the value of m, and we will find the value of m like this according to Raoult's formula. Okay, molar elevation method. This is the formula of molar elevation constant, and here we can find out the value of m2, that will be the molar mass of solute, and molar mass of solute means abnormal molar mass of solute. Okay, molar depression method. According to this formula, molar depression constant is Kf is equals to delta TF W1 M2 upon 1000 into W2. We can find out the value of M2 according to this formula also. So here are 4 methods by which we can count abnormal molar masses. So those are the abnormal molar masses and those are the normal molar masses. Okay, so normal molar masses we have studied earlier in our previous classes, and we will talk about the abnormal molar mass. So what is abnormal molar mass? A molar mass that is either higher or lower than the expected or the molar mass that is either higher or lower than the expected or normal values is called abnormal molar mass.
इट इज़ ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। क्यों होता है ये एबनॉर्मल, क्यों आती है हमारी वैल्यू? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स या तो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और या फिर कुछ डिसोसिएट हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो हमारी ये सारी जो वैल्यू अपने ने जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और ये सब जो निकाला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है? ऑल दोज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है वो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और अगर पार्टिकल्स ही आपस में डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं तो हमारे मोलर मास नॉर्मल कैसे आएंगे? सो इन दोज पार्टिकल्स वी विल गेट एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी हमको नॉर्मल मोलर मास नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एबनॉर्मल मिलेंगे। जो नॉर्मल मोलर मास है उससे या तो थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे या फिर थोड़ा कम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल KCl, तो KCl डिसोसिएट होता है। क्या होता है? इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, इट विल डिसोसिएट इनटू K+ एंड Cl-। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल्स, तो पार्टिकल्स के नंबर्स क्या होंगे? डबल हो जाएंगे ना, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जा रहे हैं। एंड इन इथेनोइक एसिड इट डाइमराइज, क्या हो जाएगा? तो वो डाइमर बन जाएगा, उसका डाइमर बन जाएगा, मतलब वो एसोसिएट हो जाएंगे। दो इथेनोइक एसिड आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। सो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे ना। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डबल हो जाते हैं या हाफ हो जाते हैं तो हमारे मोलर मास नॉर्मल हमको कैसे मिलेंगे? वी विल नॉट गेट द नॉर्मल मोलर मास अकॉर्डिंग टू those formulas and we will get the abnormal molar mass through those 4 formulas. So here we can brief those topics of association and dissociation. Number of particles halves, association में क्या होता है? number of particle halves और dissociation में number of particle doubles. Okay, so molar mass calculated is twice the normal mass. normal mass से इसका molar mass कितना आएगा हमारा? twice, मतलब इंक्रीज होके आएगा। क्या आएगा? हायर आएगा। ओके, और डिसोसिएशन में मोलर मास कैलकुलेटेड इज हाफ द नॉर्मल मास। नॉर्मल मास से मोलर मास कितना आएगा हमारा? आधा आएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा? लोअर आएगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में हमको जो मोलर मास मिलेंगे वो या तो हमको हायर मिलेंगे या फिर हमको लोअर। अगर पार्टिकल्स एसोसिएट होते हैं तो हमको क्या मिलेंगे? हायर मिलेंगे, और डिसोसिएट होते हैं तो हमको लोअर वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, सो हियर वी विल काउंट वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर को क्या बोलते हैं? अपने आई बोलते हैं। तो आई के हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हैं। आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव। हियर आई हैव डिस्क्राइब दैट कैलकुलेटेड मीन्स थियोरेटिकल, कैलकुलेटेड मीन्स थियोरेटिकल, जो हमारा पुराना वाला मेथड था। कौन सा वाला? वही जो H2O का 18 होता है ना, वो वाला। ओके, here next formula is I is equals to theoretical molar mass of solute upon experimental molar mass of solute. Last one is I is equals to total number of moles of solute after dissociation or association upon total number of moles of solute before dissociation or association. From any of those formula we can count want ऑफ फैक्टर। और हमको अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन काउंट करना है तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आई। क्या करना पड़ेगा हमको? आई ढूंढना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमारे पास हो उसके अकॉर्डिंग हमको उसमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जो 2 फॉर्मूलाज लिखे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोज फॉर्मूलाज आर नॉट गिवन प्रॉपरली इन योर NCERT टेक्स्ट बुक। सो आई हैव put 2 formulas which are very important and which will become very easier for you. Okay, number of degree of dissociation can be count as x is equals to I. I is want of factor. Okay, I minus 1 upon n minus 1. n is number of molecule dissociate. डिसोसिएशन है तो n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट। ठीक है ना, जैसे KCl का एग्जांपल दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट कितना आ जाएगा? n का वैल्यू 2 आ जाएगा ना। डिसोसिएट होके कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो KCl के लिए n की वैल्यू कितना आएगी यहाँ? 2। ओके, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए x इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई ब्रैकेट क्लोज n अपॉन n माइनस 1। हियर ऑल्सो n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइंस। ठीक है ना, कि इतने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। जैसे हमारा इथेनोइक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डाइमर बना लेते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 2 आएगी। ओके, सो this topic has been completed. So those are the normal molar masses as we have studied in our previous class. Okay, and those are the
method to determine abnormal molar mass. Okay, so in those two examples which are given in your textbook, example number 2.12 and 2.13, those two examples will be solved step by step and you will follow only and only my method, not textual method. Okay, you will follow my method. Okay, तो step 1, वॉट एवर वैल्यूज गिवन, चाहे हमको KF वाला दिया हो, डिप्रेशन पॉइंट वाला दिया हो, ये देखो वेट, ये इसमें से हमको जो हमने इसमें मैंने 4 जो अपने फॉर्मूलाज बताए हैं, तो अगर हमको ये वैल्यू दी हुई है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 2। सपोज हमको ऑस्मोटिक प्रेशर रिगार्डिंग वैल्यू दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला नंबर 4। सपोज हमको जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर और ये सारी वैल्यू दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए, फॉर्मूला नंबर 1। तो हमको क्वेश्चन में जो कोई वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कोई एक फॉर्मूला इन चारों में से हमको अप्लाई करना है। तो स्टेप 1, वॉट एवर वैल्यूज गिवन एनालाइज देम, उनको एनालाइज करो एंड अप्लाई सूटेबल फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग m। ठीक है ना, m काउंट करने के लिए सूटेबल फॉर्मूला हमको लगाना है। ठीक है, स्टेप 2, दिस वैल्यू ऑफ m इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कौन सी है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलो, चाहे तुम एबनॉर्मल मोलर मास बोलो, क्या बोलो, एबनॉर्मल मोलर मास बोलो। ठीक है, फिर स्टेप 3, काउंट वांट ऑफ फैक्टर। मैंने बोला था तुमको कि वांट ऑफ फैक्टर अपने को काउंट करना है। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए वेट, हाँ, तो वांट ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए काउंट वांट ऑफ फैक्टर आई, क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर को हम आई कहते हैं। सो फॉर्मूलाज गिवन ऑन पेज नंबर 15 टू काउंट आई। तो 15 नंबर पेज पे मैंने दिए हुए फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला हमको काउंट करना है, फॉर्मूला से हमको काउंट करना है। तो स्टेप 3 समझ आ गया आपको, पहले मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है अपने को, जो 4 फॉर्मूले ऑस्मोटिक प्रेशर और राउल्ट्स लॉ और वो सारे वाले दिए हैं उनमें से कोई एक फॉर्मूला लगा के हमको जो वैल्यूज दिए उसके अकॉर्डिंग m ढूंढना है। उसके बाद हमको i ढूंढना है, तो i के लिए भी 4 फॉर्मूले दिए, उसमें से अपने सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टेप 4, अप्लाई फॉर्मूला ऑफ डिग्री। अब हमको डिसोसिएशन पूछा है या एसोसिएशन पूछा है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसोसिएशन या एसोसिएशन का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, जो कौन से पेज पे लिखा है, गिवन ऑन पेज नंबर 15। किस पे लिखा है, गिवन ऑन पेज नंबर 15 है ना। एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फॉर्मूला किस पे लिखा है, पेज नंबर 15। ओके, सो आफ्टर दैट those examples we will be able to solve here. Okay, example number 2.12. so 2.12 में अपने को कौन सी वैल्यूज दी हुई है, देखो इसमें अपने को KF TF वाला वैल्यूज दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, KF TF वाला। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, जो कौन सा है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला, फॉर्मूला नंबर 3। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 से अपने क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा के गिवन वैल्यूज देके अपने हमने इसमें 241 जो हमने निकाल लिया है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल, जो हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंटल मतलब एबनॉर्मल, कौन सा है ये, एक्सपेरिमेंटल मतलब एबनॉर्मल। ठीक है ना, अब अपने एबनॉर्मल निकालने के बाद में अपने ये हमारा एबनॉर्मल वैल्यू आया 241। कितना आया है, 241। तो एबनॉर्मल ये देखो 241 हमने लिखा, एबनॉर्मल 241। और नॉर्मल मोलर मास है ना, बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास देखो मैंने बुक में भी अभी तुमको बेंजोइक, एक सेकेंड, C6, एक सेकेंड, मैंने यहाँ इथेनॉइक लिख दिया है गलती से, इसको मैं बेंजोइक कर देती हूँ। ठीक है, सो बेंजोइक का मैंने निकाल के भी रखा है, देखो 122। बेंजोइक का कितना निकाला है, 122। तो नॉर्मल मोलर मास बेंजोइक का 122 होता है, और हमने m का फॉर्मूला लगा के निकाला, वो कितना आया, 241 आया। तो हम नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास करके आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आई ढूंढ लिया हमने ये। ठीक है, तो हमने कहाँ तक काम कर लिया, स्टेप 3 तक काम कर लिया। स्टेप 3 के बाद में 4th स्टेप कौन सा है अपना, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसोसिएशन, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एसोसिएशन वाला। डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 माइनस आई n अपॉन n-1। तो हम ढूंढेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बस एसोसिएशन ढूंढ लिया। उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.2% हमारा, ये देखो ये हमारा आंसर यहाँ तक सॉल्व
हो गया। ठीक है, तो बुक में थोड़ा मेथड अलग है, मैंने उस मेथड को थोड़ा आसान कर दिया है। ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.12 तक हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें हमको एसिडिक एसिड का हमको क्या दिया है, इसमें डेंसिटी डी दिया है ना, और हमको इसमें V दिया है। क्या दिया है, डेंसिटी। हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी होता है, तो इसमें मास ढूंढेंगे तो मास इज इक्वल्स टू V इंटू डी हो जाएगा। तो ये हमने V इंटू डी 0.6 इंटू 1.06 करके हमने क्या निकाल लिया, इसका मोल्स निकाल लिए। एक सेकेंड, मास निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, मास निकाल लिया। और नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, या W/M भी बोलते हैं जिसको अपने। तो अपने जो इसका m कितना आएगा हमारा, ये आएगा V इंटू डी, ये V इंटू डी। और कैपिटल M कितना आएगा, क्या है हमारा एसिटिक एसिड, तो CH3COOH का मोलर मास कितना होता है 60, काउंट कर लेना। ठीक है, कार्बन का 12 तो 12 24 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 16 हमारे 32 हो जाएंगे, और उसमें हम ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो हमने क्या ढूंढ लिए, मोल्स ढूंढ लिए। क्या ढूंढ लिए, मोल्स ढूंढ लिए। मोल्स मतलब N ढूंढ दिया आपने। ठीक है, अब अपने मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मोलालिटी के फॉर्मूले में अपने मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, तो ये इसमें मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा मोलालिटी आ गया। हमारा क्या आ गया, मोलालिटी। ये क्या ढूंढा है हमने, मोलालिटी ढूंढा है। ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, पता है अपने को फॉर्मूला आपने आगे पढ़ाई है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF डॉट M। M क्या होता है यहाँ, मोलालिटी। तो मोलालिटी तो हमने ढूंढ ही ली है, ये रही मोलालिटी। और KF का वैल्यू इसमें गिवन देना भूल गए वो लोग, तुम ना लिख लेना। ठीक है, तो KF का वैल्यू ये रहा। तो ठीक है, तो हम डेल्टा TF अपने ने ये ढूंढ लिया। ठीक है, तो अब ये डेल्टा TF वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए अपने फॉर्मूला इसमें अपने ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, ये देखो ये रहा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा ये जो हमने काउंट किया ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, और इसमें जो हमारा ऑब्जर्व्ड है वो 0.0205। ठीक है, जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, समझ आई। तो ये वैल्यूज़ ऊपर आएगी, और फॉर्मूला से हमने जो काउंट करा इतनी भेजामारी करने के बाद वो वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो हमने क्या ढूंढ लिया, I ढूंढ लिया। ठीक है, वही हम कहाँ तक पहुँच गए, स्टेप 3 तक पहुँच गए, मतलब हमने I ढूंढ लिया। I ढूंढने के बाद में ये देखो मैंने बुक में सर्कल किया है, तुम भी अपनी अपनी बुक में सर्कल कर लेना। ठीक है, I ढूंढने के बाद हमको कुछ नहीं करना। I ढूंढने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन का। ठीक है, तो इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई करेंगे, ये रहा अल्फा, जिसको हम एक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन में, एसिटिक एसिड, तो CH3COO माइनस और H+। तो अपना ये क्या है हमारा डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ N का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट। तो कितने डिसोसिएट होके बन रहे हैं, 2। तो N की वैल्यू इसमें कितना आएगी, N की वैल्यू इसमें 2 आएगी। तो हम अल्फा मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.041। बस इतना पता चल गया। उसके बाद हमने जो 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था वो फॉर्मूला यहाँ इक्विलिब्रियम वाला काउंट करेंगे, अपने लिखेंगे CH3CO इज इक्वल टू H++ ये माइनस, ये x है, ये x है, तो ये कितना होगा 1 - x। ठीक है, और इसको मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके लिए फिर जस्ट तुम इस पे आ जाओ, इसके बाद किस पे आ जाओ, जस्ट इस पे आ जाओ। तो इसमें अपने ने ये फॉर्मूला रखेंगे, ये दोनों कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। ठीक है, इसका और इसका, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ये रहा n का वैल्यू, ये क्या है n है, और ये भी क्या है n है, और ये भी क्या है n है। ठीक है, और इसके साथ में n के बाद में x की वैल्यू कहाँ से आई, ये क्या है x है, ये क्या है x है, सॉरी यहाँ पे x, और ये भी क्या है, ये हमारा 1 - x है। x कहाँ से आया हमारा, x हमारा ये रहा, x हमारा, चलो मैं अल्फा कट कर देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, x हमारा ये रहा। ठीक है, x की वैल्यू ये, तो बस हमारा डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट जो ढूंढा है वो हमारा फाइनली
ऑब्टेन हो जाएगा. सो क्लियर, आई होप all those things have been cleared. Okay, all doubts must have been cleared. If you have any doubt, you can call me anytime. Okay, thank you. In my next video I will start to explain you. Our next chapter will be chapter number 6, general principle and process of isolation of elements. Okay, bye.